Good morning, students. Today we will start with the chapter 12, perimeter and area. So perimeter means the outer boundary, length of the outer boundary of any of the geometrical figure. बाहरी क्षेत्र मतलब कि यदि इस प्लेग्राउंड की बात करें तो ये बच्चे आउटर बाउंड्री पर वॉक करेंगे. दैट मीन्स दे आर वॉकिंग ऑन द पेरीमीटर ऑफ द ग्राउंड. सो perimeter means the length of the outer boundary of any of the figure. So here we will discuss about this question number 1 and you have to find out the perimeter. So perimeter means इन बाहरी क्षेत्र को, बाहरी मेजरमेंट को आप जब ऐड कर देते हैं तो आप उसका पेरीमीटर कैलकुलेट कर पाएंगे. This we have discussed in our activity also. So see here I am explaining question number 2 that you have to do in the book only. Here we can see that some figures are given to you on the square grid paper and each small square is equal to 1 centimeter of size. तो हमें इसकी पेरीमीटर निकालने के लिए सारे स्क्वायर्स जितने भी कवर कर रहा है ये उसको काउंट करना होगा. Like we will start from here. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 16. That means this figure's perimeter is 16 centimeter. Now we will calculate the perimeter of this figure. Start from here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. So 20 centimeter is the perimeter of this figure. In the same way we will calculate this. Just do in the book only. This question you have to do in book. And these two questions you have to do in the homework copy. You will do yourself. Simply you have to add all these digits and then you will get the perimeter. Perimeter is outer measurement. जितना भी बाहरी measurement given है उन सबको add कर दीजिए. You will get the perimeter. Now we will talk to solve some of the questions. See here we will do question number 4. Here we have to find out the perimeter of a triangle whose sides are. Triangle is having 3 sides, we know very well. And 3 sides are given to you, 14 centimeter, 26 centimeter and 13 centimeter. So what will be the perimeter? Perimeter is sum of all sides. तीनों को यदि हम बाहरी लेंथ को हम ऐड कर देते हैं तो perimeter we can find out. तो हमने तीनों को ऐड किया 14 centimeter, 26 centimeter and 13 centimeter. Then we got 53 centimeter. So perimeter of this figure is 53 centimeter. Now the next question. Here we have to find out the perimeter of a triangle and the measurement is 11 centimeter, 17 centimeter and 19 centimeter. So what will be the perimeter? Perimeter is sum of all sides. These are the 3 sides. These are the 3 sides 11, 17 and 19. Add all these 3, we will get 47 centimeter. So 47 centimeter is the perimeter of this triangle. Now this is the question number 5. Find the perimeter of a triangle whose sides are equal and measures 7 centimeter each. अभी कोई triangle है और triangle की तीनों ही side equal हैं. Means ये यदि 7 है तो ये भी 7 है और ये भी 7 है. So इस तरह के triangle का perimeter क्या होगा? That means sum of all sides. इन तीनों को या तो हम प्लस कर देंगे या फिर we can use the formula 3 into sides. 3 into sides क्यों? क्योंकि sides सारी equal हैं तो 3 बार रिपीट हो रही हैं तो we can multiply 3 into side. एक साइड लेकर उसको 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि साइड सारी बराबर हैं. So 7 plus 7 plus 7 is equals to 21 or we can write 3 into 7 that is also equals to 21 centimeter. The perimeter of this triangle whose all sides are equal is 21 centimeter.
Now come to the next question. Two sides of a triangle are equal and measure 4 centimeter each. If the perimeter of a triangle is 13 centimeter, find the third side. अभी देखिए यहाँ कोई ट्राइंगल है जिसका 2 साइड्स हमें पता है, 2 साइड्स 4 सेंटीमीटर के गिवन हैं. जैसा कि क्वेश्चन में बोला है, 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल एंड मेजर्स 4 सेंटीमीटर ईच. 2 साइड्स बराबर हैं और दोनों 4 सेंटीमीटर की हैं. फाइंड द थर्ड साइड. हमें थर्ड साइड नहीं मालूम है, इसको हम x मान लेते हैं. हमें नहीं पता ये थर्ड साइड का क्या मेजरमेंट है. बट पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज गिवन टू यू, दैट इज 13 सेंटीमीटर. इन तीनों का जो एडिशन है वो हमें पहले से पता है, वो है 13 सेंटीमीटर. सो वी हैव टू फाइंड आउट द थर्ड साइड. लेट्स सी हाउ वी विल डू दिस क्वेश्चन. फॉर्मूला फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट, दैट इज द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स. सबसे पहले तो आप हमेशा हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखेंगे. तो फॉर्मूला ये होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल की जगह पर हमें पेरीमीटर गिवन है तो वो लिख देंगे हम 13 सेंटीमीटर. सम ऑफ ऑल साइड्स, अब 2 साइड्स गिवन है, तीसरी गिवन नहीं है, तो हम 2 साइड्स को लिख देंगे 4 + 4 एंड तीसरी के लिए लिखेंगे x. नाउ 13 सेंटीमीटर इक्वल्स टू, ऐड किया 8 सेंटीमीटर प्लस x. अब हमें इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अब इस 8 सेंटीमीटर को हम इस तरफ ले जाएंगे, 13 और इस 8 को दोनों को माइनस करेंगे, क्योंकि ये नंबर इधर तो प्लस में है लेकिन इक्वल टू के उधर जाने के बाद ये माइनस का हो जाएगा. कभी भी कोई नंबर इक्वल टू से लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड शिफ्ट करने पर उसका साइन चेंज हो जाता है. तो यहाँ से ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है, यहाँ प्लस का है तो वहां जाके ये माइनस का हो जाएगा. तो 13 में से 8 माइनस किया, आ गया 5 सेंटीमीटर. तो x की वैल्यू हो गई 5 सेंटीमीटर. दैट मीन्स दिस थर्ड साइड इज इक्वल्स टू 5. x की वैल्यू 5. अब अपन इसको चेक करें, 4 + 4 8, 8 + 5 13. तो आंसर आ गया 13. मीन्स पेरीमीटर 13 था और साइड हो गई 5. क्रॉस चेक भी आप कर सकते हैं. Now the next question. Find the missing length of quadrilateral if the perimeter is 22 centimeter. Quadrilateral, as we have learned this word in the last chapter in the geometry, basics of geometry में आपने ये शब्द सुना है. Polygons के टाइप्स जब हमने पढ़ा था तो उसमें quadrilateral भी था क्वार्टरली कोर्स में. Quadrilateral is a figure which is made up of 4 line segments. तो जो भी फिगर 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ होता है वो कहलाता है क्वाड्रिलेटरल. अब क्वाड्रिलेटरल में आपको फिगर गिवन है बुक में, इसके 3 साइड्स गिवन है, चौथा साइड गिवन नहीं है. एंड पेरीमीटर इज ऑल्सो गिवन टू यू, दैट इज 22 सेंटीमीटर. अब देखिए पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स. पेरीमीटर की जगह पे हम इसकी वैल्यू लिख देंगे, दैट इज 22. सो पेरीमीटर की जगह पेरीमीटर की वैल्यू लिखने के बाद सम ऑफ ऑल साइड्स, अब साइड्स की वैल्यू हम लिखेंगे. फर्स्ट 6, 4 and 3. दिस इज नॉट गिवन टू यू, दिस आई हैव रिटन आफ्टरवर्ड्स. सो ये वैल्यू आपको गिवन नहीं है. यू कैन सी इन द बुक ऑल्सो. बस ये 3 वैल्यू आपको गिवन है, 3, 6 and 4. और चौथी निकालनी है आपको, फाइंड आउट करनी है, तो हम उसको x मान लेते हैं. नाउ एड 6 + 4 + 3 इज 13 सेंटीमीटर प्लस x की जगह x लिख देंगे. और यहाँ पेरीमीटर गिवन है 22 सेंटीमीटर. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस x. सिंपली व्हाट आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्वेश्चन कि जब भी कोई नंबर इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है. यहाँ ये 13 सेंटीमीटर प्लस का है
तो ये इक्वल टू के इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये साइन है इक्वल टू का। अब 22 में से माइनस किया 13 तो आ गया 9। तो 9 सेंटीमीटर इज द वैल्यू ऑफ दिस x, मीन्स ये वाली जो लाइन है वो 9 सेंटीमीटर की है। In this way we can find out the sides if perimeter is given to you, and we can find out the perimeter if sides are given to you. So this is the exercise 12A. All these questions you have to do in your classwork copy, and these are the homework questions which you have to do in the homework copy. Question 1AB, 4AB, and the last question number 8. Thank you. Goodbye for today.